गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाउ इज एवरीवन? हैप्पी? Walaikum salam to all of you. Let me see if it is uploaded already. Still wait. Happy. I'm very much happy. So today, from Unit 1, as we learn about the concept of the teaching and learning in very detail. So today we will learn the objective, reflective writing and critical thinking. Unit 1 is comprises of the three objective, and three objective I have made so many lectures. So Unit 1 के जो objective है develop an understanding of reflective learning. So today we fulfill this objective mean develop an understanding of the reflective learning. कि reflective learning क्या होती है, what are the processes involved in the, क्या model है, क्या practice है. फिर इसमें दूसरा जो है जनरल राइटिंग के बारे में सीखेंगे, and third one is critical thinking के बारे में हम learn करेंगे कि critical thinking क्या होती है. First of all, we will learn about the develop and understanding of the reflective learning. Reflective learning के बारे में इसको समझेंगे और सीखेंगे कि ये क्या, इसके डेफिनेशंस पढ़ेंगे, इसके मॉडल के मेथड को अंडरस्टैंड करेंगे कि रिफ्लेक्टिव लर्निंग के अंदर की क्या डिफरेंट डेफिनेशंस है, क्या डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशनिस्ट हैं और द रिफ्लेक्टर्स जो हैं, द एक्सपीरियंस्ड पीपल जो हैं, जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर करते हैं थ्रू द रिफ्लेक्शंस. क्या मॉडल्स हैं, क्या साइकोलॉजिस्ट एजुकेशनिस्ट के क्या मॉडल्स हैं दैट आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्टिव लर्निंग, रीडिंग एंड राइटिंग. क्या मेथड है इसके. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू tell you about the reflections. Reflection is an important human activity in which people recapture their experience, think about it, mull over and evaluate it. It is this working with the experience that is important in learning. So as we know that रिफ्लेक्शंस का एक ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, यानी कि रिकैप्चर ऑफ देयर एक्सपीरियंस से सीखते हैं. फिर हम उसको डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, एवेलुएट करते हैं कि व्हाट वेंट वेल एंड व्हाट वाज नॉट. ठीक है, तो इसके ज़रिए जो है हम जो है थ्रू द एक्सपीरियंस जो है, इट इज़ दिस वर्किंग विद एक्सपीरियंस दैट इज़ इम्पोर्टेंट इन लर्निंग. सो ये जो लर्निंग है ये हमारी एक्सपीरियंस के साथ इन्वॉल्व है, जिसका ताल्लुक हमारी एक्सपीरियंस के साथ है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग के लिए. सो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्शंस क्या है. For example, everyday event, every day your objective, how you meet, how you are planning your objective, how you meet objective, what was the gap in your objective, what was understood and what was not, what was understood and what was not. ठीक है,
क्या आपको समझ आई, क्या नहीं आई, व्हाट वाज द गैप, ठीक है। तो आप उसमें से अपने रिफ्लेक्शन से, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रिकैप्चर फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, ठीक है। जैसे आप कॉलेज आज आपने आना है, आपने अपने ऑब्जेक्टिव को मीट करना है कि आपके आज के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सो आपने क्या करना है, सो हम इसमें क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को रिकैप्चर्स करते हैं, ठीक है, उनसे सीखते हैं, उनके बारे में डीपली थिंक करते हैं कि, और उनको फिर अवेलुएट करते हैं, व्हाट वाज वेंट वेल एंड व्हाट वाज नॉट। फॉर एग्जांपल यू आर arranging your birthday party, you know. So sometime you are thinking about that, what are for example, if you are arranging the birthday party, so you will think about that, what was went well and what was not. So this is a very important human activity to learn from the experience. Like for example, if you are arranging the birthday party, so you will think about that, how many people I should call, and what food I need to arrange. So what was the experience? What was the good in the party? What was the not good in the party? So next time in the future, if you plan it about the birthday, so you will think about it and evaluate in through the evaluation, you will learn that this thing I will avoid in the futures. So this is about reflections. So we learn through the critical reflection by putting ourselves into the experience and exploring personal and theoretical knowledge to understand its view in it in different way, ठीक है। रिफ्लेक्टिव जो है वो हमें दूसरे अगर डेफिनेशंस के पॉइंट ऑफ देखा तो ये क्या है, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन है, यानी कि हम अपने आप को उस जगह पे रख कर देखते हैं, अपने एक्सपीरियंस को, ठीक है, और एक्सप्लोर करते हैं पर्सनल और थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है, टू अंडरस्टैंड इट इन द व्यू ऑफ डिफरेंट वे, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें हम दो मॉडल सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉन का मॉडल और गिब्स का मॉडल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द रिफ्लेक्टिव लर्निंग। सो जब मैं आगे बताऊंगी कि अगर इसमें देखता हम किसी भी चीज़ को क्रिटिकली थिंक करते हैं, उस जगह पे अपने आप को रख के देखते हैं कि इसके व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट एंड व्हाट विल बी द पर्सनल थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस, ठीक है। आपका उसके बारे में प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल क्या एक्सपीरियंस रहा, व्हाट वाज द नॉलेज गैप, ठीक है। तो ये इस बात को हम अंडरस्टैंड करेंगे इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। So third definition of reflection is the everyday process. We reflect on range of everyday problem or the situation all the time. What went well and what did not, why or how do I feel about it. ठीक है, like see this cat is watching herself in front of the mirror, that he is watching herself, how she look like, what is the problem. Like for example, every day we are mirroring our face because we want to see our face, how we look like, okay, what is the deficiencies. That's why I need to see the mirror. So reflection is to see yourself, everyday practices, everyday problem, everyday situation. क्या अच्छा हुआ, क्या अच्छा नहीं हुआ. This is called reflections of everyday practice. लाइक जैसे मैंने आपको एग्जांपल शेयर किया है कि अगर हम कॉलेज में आते हैं तो हमारे ऑब्जेक्टिव क्या, कौन सी क्लास में ले पाया नहीं ले पाया, उसमें क्या मेरे ऑब्जेक्टिव थे और क्या था, अगर मुझे नहीं समझ आई तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या क्या पढ़ाया गया। अगर मैं घर जाता तो मैं पूरे दिन की एक्टिविटी को रिवाइज करता हूँ कि मैंने आज क्या पढ़ा था, ठीक है, क्या मुझे समझ आई थी, क्या मुझे समझ नहीं आई थी, जो मुझे समझ आ गई थी वो क्या थी, और अगर नहीं समझ आई तो हाउ टू आई फुलफिल दैट गैप, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शंस। What is reflective learning? So it is not sufficient to have an experience in order to learn. Without reflecting on that experience, it may quick to forgotten or it learning potential lost. ठीक है, अगर उसने कहा कि रिफ्लेक्टिव लर्निंग ये होती है कि ये ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, लेकिन अगर आप अगर कोई भी काम सीखते हैं या कोई भी काम पे रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन अगर आप उसको विदाउट एक्सपीरियंस, अगर आप उसको किए बगैर अगर कोई भी चीज़ काम करते हैं या बगैर उसको सीखे बगैर काम करते हैं, तो आप कभी उस पर रिफ्लेक्ट करते नहीं, उसके बारे में सोचते नहीं है, डीपली थिंक नहीं करते, वैल्यूएट नहीं करते, तो आप कभी भी जो है क्विकली लर्न नहीं कर सकते, और वो आपकी जो है वो जो पोटेंशियल लर्निंग जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है, जो अच्छी लर्निंग हो जाती है, जो आप अच्छा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपने आज का लेक्चर लिया है, आपने इसको दोबारा प्रैक्टिस नहीं किया, इसको रिफ्लेक्ट नहीं किया, इसको थिंक नहीं किया, मल ओवर नहीं किया, ठीक है, इसको वैल्यूएट नहीं किया कि व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग इन दैट लेक्चर, सो यू विल इजीली फॉरगॉटन
what was the information, you will not be able to link the information. आप information को link नहीं कर सकते हो, ठीक है, और वो आपकी जो information है you will lost that information. So reflection is a self awareness, where reflection is a self improvement and self जो है empowerment. अब हम बात करेंगे कि सेल्फ अवेयरनेस कैसे है. थिंकिंग ऑफ योर सेल्फ, योर एक्सपीरियंस एंड योर व्यू ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि सेल्फ अवेयर, अपने बारे में सोचना, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, योर व्यू ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, आप दुनिया के बारे में आपके व्यूज़ क्या हैं, यानी कि आपकी क्या अपने ओपिनियन, ज़ाती राय क्या है, आपके क्या माइंडसेट क्या है, ठीक है, आप दुनिया के बारे में, दुनिया में क्या है, क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, व्हाट इज़ योर रोल, व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है. दिस इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस, मीन यू आर अवेयर अबाउट योर सराउंडिंग and about yourself, about the world as well, ठीक है. So this is important to reflect. For the reflection you must aware about yourself, यानी कि सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिफ्लेक्ट. जब आपको ये नहीं पता कि यू आर अपनी थिंकिंग के नहीं पता, आपके एक्सपीरियंस का नहीं पता, आपको दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू का नहीं पता, तो यू विल नॉट हैव मीन, यू विल कंसीडर not self-aware about yourself, experience and about the world. ठीक है, समझ आई. So self improvement, learning from the experience and wanting to improve some area of your life, यानी कि आप अपने एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं और आप चाहते हैं कि आप उस अपनी लाइफ के जो वो एरिया जिसमें गैप है, जो इन्फॉर्मेशन आपको मीन जो लैक एरिया है, यू विल फोकस ऑन डैट. आप उस एरिया को इम्प्रूव करना चाहते हैं, डैट इज कॉल्ड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ठीक है. एंड यू विल ओनली improve yourself through the reflection, and reflection is the only way to improve yourself. Empowerment, putting you in a control of making changes and behaving in the different way. So empowerment क्या है कि you have enough control on yourself, ठीक है, to make changes and behaving in the different way, ठीक है. तो आपके अंदर अपना कंट्रोल होता है. इन circumstances and situation you can change and behave in a different way. हमने बात की है रिफ्लेक्टिव लर्निंग क्या है, रिफ्लेक्टिव. अब जरा प्लीज मैं आपको जरा एक दफा रिव्यू करवा दूं. हमने पहले सिंपली टर्म रिफ्लेक्शंस को सीखा कि रिफ्लेक्शंस क्या, जिसके हमने 3-4 डेफिनेशन सीखी हैं, ठीक है. 3 डेफिनेशन सीखी हैं कि रिफ्लेक्शंस क्या है. पहली डेफिनेशंस में हमने सीखा था कि जो रिफ्लेक्शन है ये कि इम्पोर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जिसमें इंसान के अपने एक्सपीरियंस से सीखता है और उसके बाद डीपली थिंक करता है, उसको वैल्यूएट करता है, और फिर इट इज़ दिस वर्किंग विद एक्सपीरियंस दैट इज़ इम्पोर्टेंट इन लर्निंग, ठीक है. कि जो हम अपने एक्सपीरियंस पर काम करते हैं ये हमारी लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे आज का लेक्चर लर्न किया, सीखा है आपने इसको ज़्यादा दोबारा से रिफ्लेक्ट करेंगे, अपने आप को दोबारा से इसको रीड करेंगे, पढ़ेंगे, तो डैट मीन यू आर रिफ्लेक्टिंग ऑन योर लर्निंग, ठीक है. आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, रिफ्लेक्शन दैट विल हेल्प यू टू रिकैप्चर योर एक्सपीरियंस. आपको दोबारा से वो अपनी लर्निंग पे स्टैंड करने का आप स्टैंड होंगे, आप उसको रिलेट कर सकेंगे, आप उसको साथ गैप को फुलफिल कर सकेंगे, ठीक है. फिर हमने सीखा था कि ये क्या है, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन जो होती है ना, कि थ्रू रिफ्लेक्शन होता है. क्रिटिकल जो रिफ्लेक्शन है यानी कि अपने आप को किसी सिचुएशन के अंदर या किसी जगह पे पुट करके देखना कि वेदर इज इट माई थिंकिंग इज ऑल राइट, एम आई अंडरस्टैंडिंग थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है. दोनों से मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ. इसके कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें क्या हो सकती हैं, इसके क्या मीनिंग्स हैं, ठीक है, और मैं इससे क्या मीनिंग्स ले रहा हूँ, ठीक है. ये भी हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था कि बर्थडे पार्टी की एग्जांपल दी थी कि बर्थडे पार्टी अगर आप अरेंज करते हो या कोई भी इवेंट ऑफ लाइफ आपकी ज़िंदगी में आ जाता है, इट विल गिव यू द न्यू लर्निंग, न्यू एक्सपीरियंस. कोई भी सिचुएशन जो पहली दफ़ा आती है वो आपको कभी भी, आप उससे कभी भी एक्सपीरियंस नहीं होती. सिचुएशन इज ऑलवेज न्यू इन द एवरी टाइम, ठीक है. हर टाइम सिचुएशन जो होती है न्यू होती है. That will help you to learn and stay active in that situations and through reflection. And it will happen only through reflections. So तीसरी डेफिनेशन में कि ये कि एवरीडे एक्सपीरियंस है जिसमें हम क्या करते हैं कि हम अपने प्रॉब्लम से अपने जो है एग्जाम्पल बर्थडे भी लगा सकते हैं, इसमें कोई और एग्जाम्पल लगा सकते हैं. आपकी इवेंट हो गया, आपका लेक्चर हो गया, आपकी कोई चीज़ होगी, आपकी लर्निंग, आपका डेली ऑब्जेक्टिव होगा, आपकी डेली जो है कल मैंने क्या किया था, कल मैंने जो करना था वो क्या, एम आई कंप्लीटिंग माई टास्क अकॉर्डिंगली,
ठीक है. You need to think all these things that you will recapture your experience. सो रिफ्लेक्टिव लर्निंग में हम जो बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्टिव जो है रिफ्लेक्टिव लर्निंग जो है विदाउट यू नो स्टैंडिंग ऑन आर एक्सपीरियंस. जब तक कि हम किसी चीज़ में, जैसे लर्निंग में या किसी एक्सपीरियंस में अपने आप को जो है रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, हम कभी भी लर्न नहीं कर सकते. जैसे मैंने आपको बताया था, मैं पढ़ा रही हूँ तो आप इसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे तो आप कभी भी आपकी रिफ्लेक्टिव लर्निंग में आप इन्फॉर्मेशन को लिंक नहीं कर सकते. आप उसको जो है जो क्या अंडरस्टैंड किया और क्या अंडरस्टैंड नहीं किया है. कि मैं बताता कि इसके 3 पॉइंट, ये सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट है एंड एम्पावरमेंट है. So think and write reflectively. You have to experience something. Think about what happened. Learn from experience. You think reflectively all the time. So आप क्या करते हैं जब भी आप reflective thinkers, if you want to become a reflective thinking, you always experience something. आपको सोचना है कुछ होगा. What happened? Think about what happened. क्या हुआ है, ठीक है, and learn from the experience. You think reflectively all the time because every moment there is a new learning in ahead of you. Look, the way he want to go forward, but he is thinking that how I can reach, what will be the barrier I should face, मुझे क्या क्या फेस करना पड़ेगा. This picture is showing you to reflect. आपने देखना है कि आपने अपनी जो क्रिटिकली अपनी जो थॉट को उसको रिफ्लेक्ट करना है. उसमें आपकी क्रिटिकल क्वेश्चनिंग होनी चाहिए कि मुझे क्या करना होगा. व्हाट क्वेश्चन शुड बी इन योर माइंड कि किसी भी सिचुएशंस के व्हाट हैपन, व्हाई इट हैपन, वेयर इट हैपन. तो जब हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं तो हम उसमें 5 W's एंड 1 H यूज़ करते हैं, यानी कि व्हाट हैपन. अगर आप इफ़ यू वांट टू इजीली रिमेंबर दैट फॉर्मूला तो यू कैन कीप 4 or 5 wives and 1 husband mean 1 H and 4 W's. ठीक है, तो अगर हम इसके ज़रिए भी क्रिटिकल थिंकिंग को जो क्रिटिकल जो है रिफ्लेक्टिंग को याद कर सकते हैं कि व्हाट हैपन, व्हाई इट हैपन, वेयर इट हैपन एंड हाउ टू सॉल्व इट. ठीक है, सो ये 4-5 W's है और 1 H है कि हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. कोई भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो जाता है तो यू विल ऑलवेज इन्वॉल्व योर सेल्फ क्रिटिकल इन दैट सिचुएशन एंड इवेंट के अंदर आप क्या करते हैं कि व्हाट हैपन, व्हाई इट हैपन, वेयर इट हैपन, हु इज़ इन्वॉल्व इन दैट एरिया. ठीक है, सो आपने ये चीज़ों को देखना, फिर हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. सो दिस इज़ अ 1 H. इसको कहते हैं 4-5 वाइफ्स एंड 1 हस्बैंड. ये फार्मूला है W's का और H का, फॉर जस्ट टू मेमोराइज while you're exploring your critical thinking, reflective thinking, because for the reflective thinking you need to think critically and critical thinking is required all this domain to practice this critical thinking. An example, have you ever missed the bus and then thought next time I will leave the house 5 minutes earlier? This is an example of you being reflective. You thought about an experience and decide to learn from it and do something different the next time. For example, you lost your bus. This is the example of reflective thinking. ये मैंने आपको एक और एग्जाम्पल मैंने बर्थडे पार्टी की बता दी, आपको एवरीडे लाइफ और सिचुएशंस की बता दी, अपने एक्सपीरियंस को कैसे करते हैं. ठीक है, सो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग ये है कि इफ़ यू आर समटाइम यू आर, फॉर एग्जाम्पल, you are used to come late in your class every day and giving the reason and having excuses that ma'am this was the I was sleeping, I was this problem. So try to prepare yourself 5-10 minutes earlier so that you can avoid that. This is called, and next time once you will join the new classes in classes, hope you will follow this example in your life. क्लासरूम प्रैक्टिस. ठीक है, आपने क्लासरूम के अंदर इस प्रैक्टिस को ज़रूर करना, बिकॉज दिस इज व्हाट इज द यूज टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरी इफ़ वी विल नॉट इम्प्लीमेंट दिस थ्योरी इन आवर लाइफ. ठीक है ना, तो उस नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं होता जिसको हम सिर्फ नॉलेज पेपर और डिग्री लेने के लिए कर लेते हैं, लेकिन हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करते हैं, तो दिस इज़ यूजलेस एक्चुअली. ठीक है, सो एन एग्जाम्पल है ये हमने सीखी कि अगर आप बस को मिस कर देते तो अपने 5 मिनट है पहले देखना है कि मैं नेक्स्ट टाइम इस मिस्टेक को ना करूँ. सो रिफ्लेक्शन जो होती है इनफॉर्मल भी होती है और फॉर्मल भी होती है. सॉरी, ये इनफॉर्मल और फॉर्मल 2 दफ़ा लिखा गया है, यहाँ फॉर्मल होना चाहिए.
इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन जो होती है ना, यानी कि वो आप अपने बारे में करते हैं, यानी कि खुद से करते हैं, ठीक है। जो इन्वॉल्व सेल्फ क्वेश्चनिंग, ये इनफॉर्मल है, क्योंकि बिकॉज यू आर नॉट आंसरेबल टू अदर्स, आप अपने आप को जो एवेलुएट कर रहे हैं, अपने आप को जो है रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अपनी अजम्पशन, अपनी फीलिंग्स और अपने अवेयरनेस को चेक कर रहे हैं, ठीक है, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं। तो ये क्या है, इनफॉर्मल रिफ्लेक्शंस है। इन्वॉल्व सेल्फ क्वेश्चनिंग, यानी कि खुद से क्वेश्चंस करते हैं, खुद से बारे में अपने आप से आस्क करते हैं कि मैं कितना अंडरस्टैंड किया है, व्हाट वाज माय स्ट्रेंथ, व्हाट वाज माय वीकनेस, हाउ टू फुलफिल दिस गैप, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने करनी है। सो डेवलप एन आवर अवेयरनेस ऑफ आवर ओन अजम्पशंस, और इसमें अपनी अजम्पशंस जो होती हैं उसके बारे में हम क्या करते हैं, अपनी अवेयरनेस को डेवलप करते हैं। फॉर्मल जो रिफ्लेक्शन होती है, ड्रॉ रिसर्च एंड थ्योरी, जिसमें फॉर्मल जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के थ्रू जो थ्योरी और रिसर्च करते हैं, थ्योरी डेवलप करते हैं और रिसर्च को फॉर्म करते हैं। प्रोवाइड गाइडेंस एंड फ्रेमवर्क फॉर प्रैक्टिस, इसके जरिए जो है हमें क्या होती है, प्रोवाइड गाइडेंस एंड फ्रेमवर्क फॉर प्रैक्टिस। सो एट्रीब्यूट फॉर द रिफ्लेक्शंस, हम देखेंगे इसमें बात तक की क्वालिटी एटीट्यूड इंडिविजुअल नीड टू डू प्रॉपर रिफ्लेक्शंस आर ओपन माइंडेडनेस, commitment to self inquiry, and motivation and readiness to practice. So these are the four attributes for the reflections. First, you need to be open minded, you need to willingly accept the ideas and opinion from the peoples, and you need to be committed to your work, and you should dedicate yourself, you should have the enthusiasm in you while you are working, and while you have some task or assignment और जिसमें आप काम करना चाहते हो। पहली बात, आपके अंदर ओपन माइंडनेस होनी चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए, फिर आप मोटिवेटेड होना चाहिए, एंड रेडीनेस टू change practice, and you always need to ready for learning. सो दीज आर द एट्रीब्यूट फॉर द रिफ्लेक्शन। ये नहीं कि आपके अंदर कमिटमेंट नहीं है, आप दूसरे रिफ्लेक्ट कर रहे बट यू डोंट वांट टू लिसन योर अदर पीपल पर्सपेक्टिव, आप अपने ऑडियंस जो क्रॉस क्वेश्चनिंग आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपकी कमिटमेंट नहीं करते हो, आप कहते हो मतलब भी हो सकता है आप काम करें बीच में छोड़ते हो क्योंकि यू आर फीलिंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंट, एंड ड्यू टू द क्रिटिसिज्म आपके अंदर कमिटमेंट नहीं होती है, फियर होता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं होता, असर्टिवनेस नहीं होती है, ठीक है। सो इट विल लेक योर मोटिवेशन, ये सब जो चीज़ें आपके अंदर होंगी तो आपकी मोटिवेशन जो है वो लेस हो जाएगी। लेकिन अगर आप कमिटमेंट होगा तो आपके अंदर एंथुसिज्म होगा, आप रेडी टू चेंज द प्रैक्टिस, यू विल बी गेट रेडी इन एनी सिचुएशंस कि वट एवर इज द क्रिटिसिज्म, एंड आई विल फेस द प्रॉब्लम, आई एम रेडी टू चेंज द प्रैक्टिस। सो रिफ्लेक्शंस में तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, थिंक, इमोशंस एंड एक्शंस। हमारी जो तीन चीज़ें हैं की एरिया दैट आर इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्शंस आर थिंकिंग, इमोशन एंड एक्शंस। Knowledge, skills, attitude. It widen our perspective on a problem, broaden knowledge. It helps us to develop strategy for dealing with it, develop skills. It helps us to acquire new insight into our behavior. That is changes in mean KS knowledge, skills, and attitude that change in please wait them. हम बात कर रहे थे कि क्या है आउटकम ऑफ रिफ्लेक्शन इज अ लर्निंग। सो इससे क्या होता है, हमारा नॉलेज गेन होता है, हमारे अंदर स्किल्स डेवलप होती हैं और हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। सो दिस इज द पर्पस और दिस इज द रिजल्ट ऑफ द आउटकम ऑफ द रिफ्लेक्शंस क्या है, नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड, KSA। यानी कि आपके अंदर नॉलेज बढ़ता है, आपके अंदर स्किल्स आ जाती हैं और आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है।
So what is reflective learning? So हम बात करेंगे reflective learning is a way of allowing students to step back from their learning experience to help them develop critical thinking skills and improve on futures performance by analyzing their experience. ठीक है, सो इसको अगर हम स्टूडेंट्स की लर्निंग के पॉइंट ऑफ देखें तो रिफ्लेक्टिव क्या है, रिफ्लेक्टिव लर्निंग क्या है, ये क्या करती है, स्टूडेंट्स को क्या करती है, कीप ऑन ट्रैक रखती है स्टूडेंट को, इट हेल्प टू क्रिएट अ नॉलेज, डेवलप द क्रिटिकल थिंकिंग उनके अंदर डेवलप होती है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स उनके अंदर डेवलप होती है, और उसकी उनकी जो फ्यूचर परफॉर्मेंस है वो जो है डेवलप होती है। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ स्टूडेंट। अगर आपको अपने अपने एज अ स्टूडेंट यू आर नॉट एबल टू लर्न थ्रू द रिफ्लेक्शंस, यू विल नेवर एबल टू स्टैंड ऑन योर एक्सपीरियंस। आपको पता है नहीं कि कल क्या अच्छा हुआ था, आज मुझे कल मैंने इसको इम्प्रूव करना है। तो इफ़ यू आर नॉट एबल टू स्टैंड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शंस, यू विल नॉट एबल टू improve your future or next day. Reflective practice in nursing. It enables nurses to manage the impact of caring for other peoples on the daily basis. Reflective practice can define as the process of making sense of event, situation, and action in workplace. A range of models are available for the nurses to use to support reflective practice in clinical nursing. ठीक है, सो आपके पास बेशुमार मॉडल हैं जिसको हम यूज़ करते हुए नर्सिंग में इसकी क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे कि हम इसको क्लिनिकली कैसे सिचुएशंस को, इवेंट को कैसे हैंडल कर सकते हैं। I am a reflective leader, and he has so many look as charging. His mind is charging with the full of critical thinking. Look, जब आपके अंदर mind has sparking ideas and imaginations, thought कि मुझे क्या करना, I communicate my learning in a different way. I can step positive challenges to help me achieve my goal. ठीक है, so because he has so many ideas and opinion, कि उसको पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, हाउ टू सॉल्व। ठीक है, इसके अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग जो है बहुत ज़्यादा चार्जिंग है। लुक द माइंड बिकॉज लाइट shows that his mind is sparking. Can positively with praise. I can identify ways to improve my own and other work. I enjoy sharing my learning with others. So he has so many potentials to as a reflective learner. इसको पता है कि मैंने किसी के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, अपना जो है अपना जो इंफॉर्मेशन को किस तरह से गेन करना है, मुझे पॉजिटिव जो है चैलेंजेस को किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं जो मैं अपने गोल को अचीव कर सकता हूँ। ठीक है, और इनको मैं पॉजिटिवली कैसे प्रेस करूँगा और किस तरीके से उनको उनके बारे में लर्न करूँगा, क्या वेज हैं जिनसे मैं ऐसे वेज आइडेंटिफाई जिनसे मैं अपने आप को और अपने वर्क को क्या करता हूँ इम्प्रूव कर सकता हूँ, और फिर मैं दूसरों से शेयर करूँगा, शेयर माई लर्निंग विद अदर्स। सो दैट इज़ द वे टू लर्न रिफ्लेक्टिवली। एक और है जिसमें हम मेकिंग रिफ्लेक्शन, ये जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस है। ठीक है, डिड आई आस्क अदर पीपल फॉर द फॉर एग्जाम्पल, was I resourceful in term of financing finding information, resources and material. क्या मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि मैं कहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। ठीक है, डिड आई एक्सेप्ट फेलियर एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड यूज इट टू इन्फॉर्म माई लर्निंग। ठीक है, कि अगर मेरे अंदर फेलियर आ जाए, मैं फेल हो जाता हूँ, तो मेरे अंदर इतनी एक्सेप्टेंस है कि मैं फेलियर को एक्सेप्ट कर सकूँ और मैं उससे दोबारा लर्न कर सकूँ। कुछ लोग होते हैं वो लर्निंग छोड़ देते हैं उनको बिकॉज ऑफ द फियर कि वो कॉन्फिडेंट नहीं होते, उनके अंदर नॉलेज नहीं होते हैं, और वो क्या होते हैं, शाय होते हैं, अवॉइडिंग फ्रॉम द क्रिटिसिज्म के लोग उसको क्रिटिसाइज करेंगे, इसलिए वो क्या करते हैं, लर्निंग को स्टॉप कर देते, अपने अपने जो है फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करते कि अगर हो गया है तो अपने आप को दोबारा से वो आप इंफॉर्मेशन को जो है वो गेन कर सकते हैं। Did I approach learning as an open-ended process, open to new all possibility? यानी कि आपको अपने जो है ऐसी अप्रोच लर्निंग के लिए यूज ताकि ओपन एंडेड से यू रिसीव एवरी क्रिटिसिज्म, यू रिसीव एवरी ऑल्टरनेटिव थिंग्स। आपने हर तरह से देखना है अपने माइंड को ओपन एंड, जैसे हमने देखा ना रिफ्लेक्टिव लर्निंग क्या होता है, एट्रीब्यूट जो हमने सीखे थे, ओपन माइंडनेस है, ठीक है, एंथुजियाज्म है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी कि एक रिफ्लेक्टिव लर्नर के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी। Did I try to either mark something better or create something new rather than just copy something that already exists?
ठीक है, तो हमने ये चीज़ भी देखना है कि मैं अपने आप को क्या मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ और क्रिएट समथिंग न्यू रादर दैन टू जस्ट कॉपी। फिर मैं सिर्फ किसी चीज़ को कॉपी कर, या मैं बाज़ लोग होते हैं कि वो कॉपी चीज़ों को, लोगों दूसरों की बनी बनाई चीज़ों को लेकर लेना पसंद करते हैं और खुद से वो काम करना पसंद नहीं करते। ठीक है, जैसे हम रिसर्च कर लें तो क्या करते हैं, प्लेजरिज्म करते हैं, दूसरों का डाटा चोरी करके और उसी मिस इन्फॉर्मेशन को मिस इंटरप्रेट करके और अपने नाम यूज़ करते हैं। दैट इज़ वेरी बैड, बिकॉज वी नीड टू रिफ्लेक्ट आवर ओन। हमें खुद से काम करना चाहिए, हमें खुद से देखना चाहिए, अपनी लर्निंग को खुद से स्टैंड करना चाहिए और रिस्पेक्ट एंड एक्नॉलेज टू अदर पीपल। डिड आई प्ले एंड हैव फन? दिस इज़ ऑल्सो अनदर एंथुजिज्म, कि मैं उसको एंजॉय करता हूँ, मैं उसको प्ले करता हूँ। एंड डिड आई लर्न समथिंग न्यू? क्या मैंने वाकई को नया लर्न किया फ्रॉम आर माई ओन माइंड सेट? मैंने अपनी सोच से, अपनी थिंकिंग से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपनी एवेल्यूशन के जरिए मैंने क्या अंडरस्टैंड किया है? क्या मैं पिछले वाली इस वाली बात से कि मैं सिर्फ कॉपी कर रहा हूँ? ठीक है, डिड आई शेयर माई वर्क एंड फाइंडिंग विद अदर्स? क्या मैंने जो काम किया, सीखा, मैंने दूसरों से शेयर किया है? डिड आई आस्क अदर पीपल फॉर फीडबैक एंड इन्फॉर्मेशन टू कोलैबोरेट? ठीक है, तो जब मैंने दूसरों से पूछूंगा और दूसरों से ये बात इन्फॉर्म शेयर करके उनसे फीडबैक लूंगा, तो आई विल कम टू नो हाउ मच आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई, मैंने अच्छा क्या किया है, मैंने अच्छा क्या नहीं किया। आप एवेलुएट कर सकेंगे अपने आप को। ठीक है, बाय आस्किंग द टेकिंग द फीडबैक फ्रॉम द अदर्स। सो दिस इज द वे टू रिफ्लेक्ट एज अ क्रिटिकल थिंकर। तो एक लर्नर के पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, उसका माइंड इतना वर्क करना चाहिए कि वो खुद को प्रूव कर सके दैट ही इज़ रियली स्टैंडिंग हिज ओन फुट, नॉट ऑन द फ्रॉम द वर्क ऑन समबडी एल्स, किसी दूसरे के काम पर नहीं, बल्कि ओरिजिनली ही कैन एबल टू सी हिमसेल्फ by his own strength and potential capability. ठीक है, so this is so important to learn to make reflections. अब हम गिब्स के मॉडल की बात करेंगे। हमने रिफ्लेक्शंस को बड़ा डीपली अंडरस्टैंड कर लिया कि और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से है जो हमने क्या किया है, रिफ्लेक्शंस के बारे में सीखा, इसके एट्रीब्यूट्स सीखे हैं हमने, इसके लिए जो इसके डिफरेंट ट्राइब्यूट्स सीखे हैं क्या है, नॉलेज और स्किल्स का रिफ्लेक्शन रिजल्ट के आउटकम्स क्या होते हैं, नॉलेज एटीट्यूड एंड स्किल्स इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, सो दीज आर द क्या हैं हमारे एट्रीब्यूट हैं जो हमने ये सीखा है। हमने रिफ्लेक्टिव कैप के बारे में सीखा, reflective practice is ability to reflect on one's actions so as to engage in process of continuous learning. According to one definition, it involves paying critical attention to the practical value and theory which inform everyday actions by examining practice and reflectively and reflexively। यानी कि आपके अंदर जो है एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, हमने जो जो मॉडल यूज़ करना है थ्रू दिस गिब्स मॉडल है, रिफ्लेक्टिव साइकिल है, इसके ज़रिए हमने कोई भी सिचुएशन और इवेंट को क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं। हम वार्ड में अगर क्लिनिकल सिचुएशन में कोई इवेंट हो जाता है, या आपकी पर्सनल लाइफ में हो जाता है, या आपका प्रैक्टिकल लाइफ में हो जाता है, आपकी जो है प्रोफेशनल लाइफ की वजह, स्टूडेंट लाइफ में कुछ हो जाता है, तो आपने इस मॉडल को यूज़ करते हुए हमेशा रिफ्लेक्टिव किसी इवेंट और सिचुएशंस को आपने रिकॉर्ड करना, जिसमें आपने डिस्क्रिप्शन देनी है कि क्या क्या इवेंट था, क्या था, व्हाट वाज योर फीलिंग, एवेल्युएशंस क्या थी, एनालिसिस करना है, उसको क्या पार्ट में बना के बताना है कि इसमें क्या, फिर उसको कंक्लूड करना, देन टू मेक अ एक्शंस प्लान। अब हम इसके बारे में इंडिविजुअली सीखेंगे कि पर्पस ऑफ रिफ्लेक्टिव लर्निंग क्या। इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स reflective learning has become into the educating spotlight. Reflective learning involves students thinking about what they have read, done, or learned, relating the lessons at hand on their own lives and making meaning out of the material. हमें पता चलता है कि लास्ट पिछले जो डिकेड्स गुजर रहे हैं उनमें रिफ्लेक्टिव लर्निंग का किस तरीके से जो एजुकेशन के अंदर जो असर है, आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के जरिए स्टूडेंट जो है दे आर एबल टू रीड, उसमें से रीड करते हैं, उसमें से खुद से वो उसमें से जो है अपनी जो है रीडिंग करके पैराग्राफ से जो अपना जो ओपिनियन और जिससे जो
जो एब्स्ट्रैक्ट लेते हैं, ठीक है, कोई भी हम पैराग्राफ पढ़ते हैं तो हम उसे एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट आपको मिल जाता है, आप उसको कंक्लूडिंग वे में, एक समराइज वे में आपके पास एक स्टोरी बन जाती है, आपको पता चल जाता है कि 4-5 पेजेस का जो चैप्टर था उसमें क्या क्या दिया गया है। या कोई भी आप इवेंट सिचुएशन को पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब आप रीडिंग के जरिए करते हैं, ठीक है, रीड कर सकते हैं। आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस द लेसन्स एट द हैंड टू देयर ओन लाइव्स एंड मेकिंग मीनिंग आउट ऑफ मटीरियल। यहाँ पे एक ये खूबसूरत एक जो है एजुकेशनिस्ट है, आई इसकी कोटेशंस आई लव हर इस कोटेशंस, ठीक है, मुझे इसकी कोटेशन बहुत पसंद है। वो कहता है कि वी डू नॉट लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, वी लर्न फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑन एक्सपीरियंस। ठीक है, कोई हमने एक्सपीरियंस कर लिया, लेकिन अगर हमने उसको किया ही नहीं, हमने उस पर रिफ्लेक्ट ही नहीं किया है, तो हम कभी उस किसी चीज़ को भी लर्न नहीं कर सकते। ठीक है, सो क्या कहते हैं कि वी ओनली लर्न व्हेन वी कन्फ्रंट इन द विद द प्रॉब्लम। हम जब ही लर्न करते हैं जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम और सिचुएशन आती है। ठीक है, इसके बगैर हम कभी भी लर्न नहीं कर सकते। सो एजुकेशन इज द नॉट प्रिपरेशन ऑफ द लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। ठीक है, सो एजुकेशन का उसने कहा कि कोई लाइफ को तैयार नहीं, आपको तैयार नहीं करते, बल्कि एजुकेशन जो है इटसेल्फ लाइफ, उसके अंदर ज़िंदगी आपको नज़र आती है, क्योंकि आप उसके ज़रिए लर्न करते हैं, अपने आप को एक्सपीरियंस करते हैं, और जिससे आपका नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल्स डेवलप होती हैं। ठीक है, सो वी ओनली थिंक व्हेन कन्फ्रंटिंग विद द प्रॉब्लम। तो हम उस ओनली उस वक्त सीखते और जो है हम जो है लर्न करते हैं जब हम किसी प्रॉब्लम के अंदर सिचुएशन। दैट इज कोटेड बाय जॉन डेवे। तो आपने जॉन डेवे की जो है कोटेशन को याद रखना है कि जॉन डेवे ने कहा है कि कोई भी चीज़ वी डू नॉट लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, वी लर्न फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग और एक्सपीरियंस। जब हम अपने एक्सपीरियंस पर रिफ्लेक्ट करते हैं, उसमें से जो है गैप को फिल करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, दूसरों के साथ शेयर करते हैं। जितनी सारी हमने एक रिफ्लेक्टिव लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, उस पूरे साइकिल को देखा कि उसके अंदर सो मेनी आइडियाज जनरेट होते हैं। जब वो आइडियाज जनरेट, आप अपनी माइंड को थिंकिंग कैप देते हैं, और थिंकिंग कैप के जरिए सो मेनी आइडियाज जो कैन जनरेट, और उसके जरिए हम अपनी नॉलेज को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। क्या मरियम मुख्तार तुमने लिखा, मुझे समझ नहीं आ रही। So John Dewey in 1933, how we think, क्या हम कैसे सोचते हैं? Reflection is the meaning making process, systematically disciplined way of thinking. Reflection happen in community and interactions with other. Reflection is required attitude that values the personal and intellectual growth of oneself and others. ठीक है, तो रिफ्लेक्शन एक ऐसा तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसका जो डेट इट रिक्वायर्ड अ प्रोसेस। रिफ्लेक्शन में प्रोसेस की ज़रूरत होती है कि आपको प्रॉपर सिस्टमेटिकली चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। इसके अंदर आपको डिसिप्लिन वे नज़र आता है, जिसमें आप अपनी थिंकिंग को सिस्टमेटिक वे से ऑर्गेनाइज करते हैं, डिसिप्लिन करते हैं। ठीक है, और मोस्टली कहाँ पे, कम्युनिटी। और जब कम्युनिटी में हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है, जब व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर्स, दैट ऑलवेज you will gain an reflection and have an experience. Reflection requires attitude that value the personal intellectual growth of oneself and others. So activity begin with, please think of some time things you are good at, write how you become the good at it. ठीक है, आपने एक्टिविटीज है जिसमें आपने क्या करना है, योर रिस्पॉन्सेज कुड बी एवरीथिंग ऑफ द फॉलोइंग: ट्रायल एंड एरर, रीडिंग, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड रिफ्लेक्शंस। ऑलवेज वी लर्न, बिकॉज हमने देखा ना था कि बहुत सारी थ्योरीज जो हम दूसरे डिसिप्लिन से जो हम बोरो करके हम अपने नर्सिंग में यूज़ करते हैं, वो क्यों करते हैं? इसका पर्पज़ नर्सिंग एजुकेशन में, टीचिंग में ये है ताकि हम उनके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें कि ह्यूमन की जो लर्निंग है वो किस तरह से होती है, और जो साइकोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू माइंड ऑफ आइडियाज़ हैं वो क्या हैं अबाउट द लर्निंग। वो कहते हैं कि ह्यूमन इज़ ऑलवेज लर्निंग थ्रू द ट्रायल एंड एरर।
ठीक है, जैसे उसने कैट का एक्सपेरिमेंट किया था, उसने कहा था कि एक केज बनाया था, ठीक है, जिसमें उसने एक छोटा सा होल रखा था, और उसने एक बिल्ली को कहा था कि वो उसको गुजरने दिया, उस केज को खोला और बिल्ली को गुजरने दिया। वो पहली बार गुजरी तो उसे बहुत डिफिकल्टी हुई, थोड़ा दूसरी दफ़ा गुजरी तो थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन अगर तीसरी दफ़ा गुजरी तो वो थोड़ा ईजिली गुजर गया, और उसके बाद तीसरी चौथी पांचवी जब देखा तो वो फ्रिक्वेंटली जंप करके गुजर जाती थी, बिकॉज शी लर्न हाउ टू पास दिस वे। ठीक है, सो लर्निंग इज ऑलवेज लाइक दैट, क्योंकि समटाइम हम ट्रायल एंड एरर से हम पढ़ते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्ट करते हैं। सो इन दैट सिचुएशन जो होती है हमारी लर्निंग होती है। रीडिंग, डिस्कशंस, प्रैक्टिस, रिफ्लेक्शन ऑन प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हेल्प टू ऑन आवर ओन एक्सपीरियंस, ऑन स्किल्स, बाय डूइंग इट और बाय टॉकिंग टू द पीपल अबाउट इट, trying different methods, thinking about the issues, reflecting on mistakes. So, in summary, the following emerge: practice, do it, trial and error, learning from the mistake, and reflecting. अगर हम पूरे चारों पैरा इन चार पॉइंट को समराइज करें तो we'll come to understand in the fourth point that learning is trial and error, learning by doing, practice by doing it, trial and error है, ठीक है। सो लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक, हमेशा हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, और रिफ्लेक्टिंग से हम सीखते हैं। जब हम अपने एक्सपीरियंस पर रिफ्लेक्ट करते हैं देन यू आर एबल टू लर्न। ठीक है, 45 मिनट माय डियर स्टूडेंट्स हो चुके हैं। सो हम रिफ्लेक्टिव रीडिंग जो है वो बाद में पढ़ेंगे। हमने रिफ्लेक्टिव लर्निंग की जो है बड़ी बात की है, बहुत ज़्यादा इसको डीपली अंडरस्टैंड किया कि रिफ्लेक्टिव इन डिफरेंट एंगल से क्या हो सकती है, कि एक बीइंग स्टूडेंट्स हमें कैसे करना चाहिए अपने जो आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, इनफॉर्मल फॉर्मल वे में आप किस तरीके से अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टैंड वेल। So wait, I will mark your attendance.